Okay. I will also make that announcement on LMS that if you want to attend the lectures, just come during the lecture time. Okay. Okay, so today's topic is about passing arrays. And so when I say passing arrays, what I mean is that uh, yeah, like so far we have been creating different functions, and whenever we want to pass a value of certain variable to that function, we pass that with that value as an argument to that function. Okay, so it says like, okay, this is the function, and if you want to make this function work, you have to accept this data from that function, and the function works on that data. So we have been working so far with literals. We have been working with integers, strings, uh, float, double, but we haven't been working with strings when it comes to passing the array. Okay? So passing the array is slightly different, and there's a reason for that. Okay? I will try to explain again. I'm going to show my really good artistic skills, and and I'll try to explain with this example. Okay, so whenever you write something like an integer and you create an array, let's call it data. Okay, when you write something like this, just this. Okay, so what happens is Sir, that we can't see your screen. you can't. Oh, sorry. Okay, thank you. Well, normally when I plug it in, you cannot speak. Well, something. Okay, something happened. I don't know. Uh, share screen, share screen, share screen, share screen. Share. All right. So when you write something like this, so what happens is that, as I've explained to you before, that you have the memory locations, and these memory locations are distributed. So I'll try to make it as neat as possible. Or maybe I'll just draw more boxes. Something like this, and then something like this, something like this. Okay. So So something like this. So whenever you have like integer data, you have some memory over here. The memory is always hexadecimal values. So it's sometimes like 0x011. I'm just keeping things simpler over here. Okay, so I won't write. Normally it's like eight digits over here, and then there's another memory location. It's 0x014. Then another memory location which is 0x020 and something like that, so on. Okay, so we have different memory locations. So whenever you write int data, so what happens is that the computer randomly picks any random memory location, and it starts calling it data. So in this case, suppose it starts calling this as data. Okay. So whenever you declare a variable normally, so like something like integer a is equal to 10. Okay, whenever you like something like this. So we normally say like this variable has an L value and it has an R value. L value means the left value, R value means the right value. Okay, so in this case, the right value is 10 and the left value is A. Okay, and whenever we call A, so there isn't specifically an A over there. What the A is referring to is one of these memory locations. Okay, because we take a memory location, we cannot remember the name of the memory location. It's really long, it's a digit, and it's really long, you cannot remember that. So we give it a certain name. So with the name, it's easier for us to remember the memory location. So the L value, so in this case, suppose I write int A and A is there. So when we say like, okay, the R value is 10, which means like in this memory location, we store the value 10. And we say like, okay, what is the L value? So L value is A, which is in fact is 0x011. Okay.
इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप जब ए लिखते हैं तो ए का मतलब ये है कि या तो आप कंप्यूटर को समझ में आ जाता है कि ए जो है वो मैं एड्रेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मैं इस वैल्यू की बात नहीं कर, 10 की बात नहीं कर, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ कहूँगा ए इज इक्वल टू 10, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो दैट इज एक्चुअली 10। तो कंप्यूटर जो है वो हमेशा जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक एल वैल्यू होती है, एक आर वैल्यू होती है। एल वैल्यू जो होती है इसको कहते हैं हम वेरिएबल का एड्रेस, जहाँ पे वेरिएबल पड़ा हुआ है। आर वैल्यू होती है कि उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो एल वैल्यू आर वैल्यू ये हो जाती है। जो जो एरे है उसमें क्या है कि जब आप लिखते हैं इंटीजर डेटा, सो यू आर नॉट एक्चुअली टेलिंग द कंप्यूटर लाइक हाउ मच डेटा, कितने उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक। तो कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर ने उसको डिक्लेयर करना होता है, ठीक। तो कंप्यूटर क्या करता है, कोई रैंडम मेमोरी लोकेशन लेता है और उसको डेटा नाम दे देता है, ठीक है। सो द डेटा इज एक्चुअली पॉइंटिंग टुवर्ड द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन। इसके बाद अगर मैं करता हूँ डेटा is equal to new int and I declare something like 5, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर कहता है कि अच्छा अब इसकी मैंने मेमोरी लोकेशन जो है 5 डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, डेटा जो है वो इन 5 लोकेशंस की तरफ पॉइंट करेगा, 1 2 3 और ये 4 5, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डेटा मीन्स, ठीक है। जब मैं लिख देता हूँ डेटा इज इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है, तो इसकी तरफ 5 पॉइंट करेगा। अब ये जो 5 भी हो सकती हैं, 500 भी हो सकती हैं, 5000 भी हो सकती हैं, ठीक। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि हम इधर आते हैं, कोड में आते हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि अगर मैं नॉर्मली जब आप वेरिएबल पास करते हैं तो वो क्या करता है कि वो पास बाय वैल्यू होता है, उसकी वैल्यू पास करता है, वेरिएबल को इटसेल्फ पास नहीं करता, ठीक है। हमने पिछले क्लास में ये किया था, ठीक है। तो वो वेरिएबल से वैल्यू को पास करेगा। तो अगर हम एक वेरिएबल को पास करते हैं उसकी वैल्यू को पास करता है, ठीक। इसका मतलब ये कि जब वैल्यू पास करता है तो वो एक और वेरिएबल में उसकी वैल्यू को स्टोर करता है। यही होता है ना कि जो वैल्यू पास की है तो फंक्शन अपना एक वेरिएबल जो है जो आर्गुमेंट में डिफाइन किया होता है वो उसके अंदर उस वैल्यू को स्टोर करता है। अब मसला ये है कि अगर आपने जो वैल्यू पास करे हैं वो एक एरे है और एरे के अंदर 5 बिलियन वैल्यूज है, तो आपको 5 बिलियन वैल्यू की कॉपी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि हम तो हमेशा कॉपी बनाते हैं उसकी, तो अगर आप वेरिएबल को आप एरे है उसको पास करेंगे, उसके अंदर 5 बिलियन वैल्यूज है, तो आपको 5 बिलियन वैल्यूज की कॉपी बनानी पड़ेगी। यानी कि अगर 5 बिलियन मेमोरी लोकेशन अभी यूज हो रही है तो आपको एक्स्ट्रा 5 बिलियन मेमोरी लोकेशन चाहिए और उसमें आपको सारी वैल्यूज को कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है नंबर 1 कि आपको इतनी ज़्यादा मेमोरी चाहिए, प्रॉब्लम नंबर 2 कि उसको कॉपी करने का टाइम चाहिए, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो जब भी आप एरे को पास करते हैं तो आप उसकी आर वैल्यूज पास नहीं करते, आप उसकी एल वैल्यू पास करते हैं। यानी कि आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि मैं उसकी वैल्यूज पास नहीं कर रहा, मैं वेरिएबल को इटसेल्फ पास कर रहा हूँ। तो यानी कि मैं फंक्शन को वेरिएबल का एड्रेस दे रहा होता हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक। मैं अभी अभी फिर से सब बता दूँ आपको, ठीक है। तो आ, मैं अभी आपको इससे एग्जांपल से आपको देता हूँ। ये मैं कमेंट आउट कर दूँ। सिंगल डायमेंशनल एरे इस पे आते हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे क्या कर रहा था, भूल गया। 10 किया, सही। अब देखिए सिंगल डायमेंशन एरे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। आई विल गो स्टेप बाय स्टेप एंड आई लेट एवरीबॉडी नो लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। So let me see if there is a chat. Oh, chat आई हुई है। So screen share, can someone cross and A is not reference variable. A is not reference variable. IG. IG से क्या बनता है? I guess. It's not reference variable. No, it's not a reference variable. Okay. अब हम देखते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे, ये हमारा फंक्शन है, इसमें क्या होगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिक्लेयर एन एरे ऑफ लेंथ 10, आई राइट इन डेटा, so data over here is the L value and new int, so I haven't given any R value over here, I'm just declared an array over here, okay। तो अब ये कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो 10 है, तो वो सबसे पहले एक जगह पे पॉइंट करेगा जहाँ पे उसका नाम रखेगा डेटा और कहेगा उससे लेके आगे 10 वैल्यूज जो है यहाँ आगे एरे के डिफाइन, ठीक।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ओके आई पुट डाउन इन फॉर लूप, द फॉर लूप स्टार्ट फ्रॉम 1 गोज ऑल द वे टू 10 एंड I'm assigning it the squares, ठीक है। तो I चूंकि 0 है तो y प्लस 1 हो जाएगा, I प्लस 1 0 प्लस 1 इज 1, सो 1 इंटू 1, ठीक है। तो मेरे पास 1 स्क्वायर आ जाएगा इस तरह। अगर फिर जब 1 आएगा तो 1 प्लस 1 इज 2, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह करके तो क्या करूँगा, मैं डेटा के अंदर सबसे पहले 1 स्क्वायर की वैल्यू डालता हूँ, 0 में, 1 में मैं 4 डालता हूँ, 2 में मैं वो डालता हूँ 9 डालता हूँ, 16 25, ठीक है। इस तरह करके सारी वैल्यूज के स्क्वायर वैल्यूज डालता हूँ, ठीक। और फिर मैं यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाता हूँ जो कि उस सारी वैल्यूज को आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये 1 4 9 16 25 ये सारी आपको 10 तक 100 तक आपको वैल्यूज देगा, स्क्वायर वैल्यूज देगा, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि मैं एक लाइन का गैप दे दूँ, उसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ ये कि पढ़ने में आसानी हो कि एक चीज़ के बाद दूसरी। अब मैं अगर मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, इसका नाम है क्यूब, और उसके अंदर मैं देखिए मैं डेटा पास करूँ। अब मैं इसमें ये नहीं लिख रहा कि मैं डेटा 5 या मैं डेटा 10, ये नहीं लिख रहा, मैं सिंपली डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा डेटा 0 फर्ज करें, तो ये मैं 0 लोकेशन जो है मैं वो भेज रहा हूँ, 0 लोकेशन में जो वैल्यू है वो भेज रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ एक वैल्यू भेज रहा हूँ, आई एम नॉट सेंडिंग ऑल द 10 वैल्यूज। अगर मैं लिखता हूँ डेटा 10, तो अब मैं कह रहा हूँ कि मैं 10th यानी जो 11th लोकेशन है वो मैं भेज रहा हूँ, लेकिन 11th लोकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें भी एरर दे देगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि मैं एक एक जो स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू है वो नहीं भेज रहा, मैं पूरा पूरा एरे भेज रहा हूँ, तो मुझे उस पूरे के पूरे एरे का नाम देना पड़ेगा। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप नाम देते हैं किसी वेरिएबल का, ठीक है, स्पेशली इन एरेज, ठीक है, तो जब आप नाम देते हैं तो यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस, यानी कि उसका एड्रेस वैल्यू आप भेज रहे हो। तो मैं उसका एड्रेस वैल्यू कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो जो इसकी जो एड्रेस जिस लोकेशन पे ये पड़ा हुआ डेटा उस लोकेशन पे काम करो, ठीक है। तो फिर मुझे क्या फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि मैंने उसको एड्रेस भेज दिया, अब वही वेरिएबल इस्तेमाल होगा, ठीक। और उस वेरिएबल की सारी लोकेशंस जो हैं, ठीक है, मुझे उनको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके आगे सारी लोकेशन ऑटोमेटिकली मैंने बनाई हुई है, ठीक। तो आई एम नॉट सेंडिंग द एंटायर एरे, आई एम जस्ट पासिंग द एड्रेस, ठीक है ना। ये आप कोई अगर आप कह रहे हैं कि आओ चलो पार्टी में चलते हैं, ठीक है ना, अब तो ये नहीं करें कि आप के आप पूरी पूरी पार्टी को ही हम मूव कर लेंगे, ठीक है। आप क्या कहते हैं, हम कहते हैं पार्टी उस एड्रेस पे है तो उस एड्रेस से पहुंच जाओ, ठीक है। तो आप एड्रेस बता देते हैं, एड्रेस के थ्रू हो जाता है। और दूसरा तरीका क्या है, आप कहेंगे 100 के 100 लोग बैठे गाड़ी में उस दो जगह, अगेन ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको एड्रेस दे देते हो। तो ये सिर्फ एरेस के तौर पर, ये कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों को। अगर आप लिटरल्स की बात करें, इंटीजर्स, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, तो उसमें जो है एड्रेसेस पास नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ वैल्यू पास होती है, लेकिन एरेस के केस में एड्रेस पास होता है, ठीक है। ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। इसको नहीं भूलना आप, इसको नहीं भूलना। अब इसी वजह से मैं लिखा क्यूब डेटा, तो ये जो मैंने डेटा वेरिएबल बनाया था ऊपर विच वाज एन एरे, आई हैव जस्ट पास इट्स नेम, सो आई एम पास इट्स एल वैल्यू विच इज द एड्रेस वैल्यू। अब क्यूब को देखते हैं, क्यूब के नीचे, ठीक। अब क्यूब के देखें आर्ग्यूमेंट जो उसमें पहले से मैंने लिखा हुआ है, इट्स एक्सेप्टिंग एन एरे, ठीक है। अब ये जो है ना एरे, अब ये चूंकि एड्रेस पास हुआ है तो ये वेरिएबल और डेटा दोनों एक ही वेरिएबल है, नाम इसका एरे है लेकिन दोनों एक ही वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि आपका ये जो डेटा है ना, इसको हमने एक और नाम दे दिया, और उसका एक और नाम जो है वो है, ये दोनों कहाँ पॉइंट करें, इस तरफ, इस जगह, ठीक है। ये ख्याल रखना है जब आप इंटी, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो एक ही लोकेशन को आप दो नाम दे सकते हैं, कंप्यूटर से बिल्कुल इतराज नहीं करता, ठीक है। इसको रेफरेंस कहते हैं कि आपने उसको एक और रेफरेंस बना दिया। ये वैसे ही है कि किसी का नाम होता है वकास होता है, तो विकी लोग कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वकास से विकी का ही रिस्पॉन्स, ठीक है, तो उसका रेफरेंस होता है।
ठीक है, तो वो बिल्कुल वही वाला तरीका है। आप एक रेफरेंस एक और रेफरेंस बना रहे हैं। व्हाई डू वी नीड टू पास एरेज, व्हाट इज द पर्पस? अभी आपको पता चल जाएगा एरेज का पास करने का पर्पस क्या है। ठीक, अच्छा, अब मैंने इसमें एरे पास कर दिया पूरा पूरा। ठीक है, अब मैं उसी वेरिएबल की बात करूँ, ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं कर रहा हूँ, मैंने एक फॉर लूप लगाया, अगेन ऑल द 10 वैल्यूज। अब इसमें मैं स्क्वायर एरिया में क्यूब कर रहा हूँ, और क्यूब को मैं उन्हीं वैल्यूज में डाल रहा हूँ। तो जहाँ पे पहले 1 था वहाँ पे तो 1 ही आएगा, लेकिन जहाँ पे 2 था वहाँ पे 8 आ जाएगा, जहाँ पे 3 था वहाँ 27 आ जाएगा, जहाँ पे 4 था वहाँ 64 आ जाएगा। ठीक है, जैसा ही जहाँ पे 4 था वहाँ पे 8 आ जाएगा, और जहाँ पे 9 था वहाँ पे 27 आ जाएगा, और जहाँ पे 16 था वहाँ पे 64 आ जाएगा। तो अब मैं ये वैल्यूज डाल दिया। ठीक है, मैं सारी वैल्यूज डाली। ठीक है, अब आप देखें मैं कुछ रिटर्न नहीं किया हुआ। नॉर्मली हम जब कोई वैल्यूज डालते हैं हम उसको रिटर्न करते थे कि भाई एक्सक्यूज मी वर्ड लिखा है, ठीक है, तो मैं रिटर्न कुछ नहीं कर रहा ना। ठीक है, नॉर्मली हम इस तरह जब डालते थे, हम फंक्शन में काम करते थे, इट यूज टू रिटर्न अ वैल्यू, उस वैल्यू को हम इस्तेमाल करते थे। इसलिए मैंने कोई वैल्यू इस्तेमाल नहीं की। वैल्यू इससे इस्तेमाल नहीं की बिकॉज द एरे ऑन विच वी आर वर्किंग इज द सेम एरे विच वॉज इन द मेन फंक्शन, क्योंकि उसका मैंने मतलब नाम ही बदल दिया और मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि एक फायदा क्या है, फायदा ये है पूरा पूरा एरे पास कर दिया। अब फर्स्ट कहें कि एरे के अंदर पूरी अनसॉर्टेड वैल्यूज थी, अब ये फंक्शन जो सब वैल्यूज को सॉर्ट कर देता है, तो असेंडिंग ऑर्डर में डाल दे या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दे। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने फंक्शन बना दिया कि ये काम करता है, जब भी आपने एरे को सॉर्ट करना है उस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये जो सब चीजें मैंने कर ली, मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया, बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑन द सेम एरे। तो सिंपली वो क्या करेगा, मैं फंक्शन कॉल किया तो वो सारा काम है ऑटोमेटिकली इधर कर दे। और जब मैं अब दोबारा इसको मैं उसी डेटा को जब मैं आउटपुट लूंगा तो मेरे पास दूसरा आउटपुट आ जाएगा। तो ये इसका फायदा है। ये वाला पार्ट फिर समझा देंगे एक दफा सर। एक मैं आप मैं अभी अब बताता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ जी। जो अपने पॉइंट के क्यूब वाला, उसके बाद जो है वो ऊपर वाली जो क्यूब का जो फंक्शन था उसके अंदर से वैल्यू होने लगी, ऊपर साइड वाली छोड़ दी, राइट? मतलब जो स्क्वायर वाला था उसकी वैल्यू छोड़कर क्यूब वाली वैल्यू ले लो उसकी वाली। हाँ, ये हमने ओवर राइट कर दिया, क्यों भाई हमने उसको ओवर राइट कर दिया थी। मैं आपको इस तरह बताता हूँ, सर वो लॉजिक समझ नहीं आई अगर कि वो ऐसे जो होती तो हर फिर नंबर का एक एक कह रहा है रिपीट करने का, एक कह रहा है कि रिटर्न स्टेटमेंट होती तो फिर क्या होता, और तीसरा कोई और सवाल। ये तो कमाल है, रिटर्न किए बगैर ओवर राइट हो गया। भाई मैं आपको बताता हूँ कि रिटर्न का, अगर रिटर्न स्टेटमेंट होगी तो फिर क्या होगा सर, इफ आई वांट टू स्टोर इनपुट बाय यूजर इन एन एरे, हाउ कैन वी डू दैट, बिकॉज वी आर अनअवेयर ऑफ द लेंथ ऑफ एरे as it depends on the number of inputs by the user। ये आप ज़रा सा एडवांस जा रहे हैं, तो उसमें आप एरे में स्टोर नहीं करते, वो आप लिंक लिस्ट में स्टोर करते हैं। अगर आपका इनपुट जो है आपको पता नहीं है कितने यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, एक तरीका तो ये है, पहले यूजर से पूछेंगे तुम कितने इनपुट दोगे। ठीक, तो वो कह देगा मैं 10 इनपुट दे दें, तो उसी वक्त आप पहले से वो इनपुट लेना पड़ेगा, 10 का आप एरे डिफाइन कर। और अगर आपने रन टाइम पे चेंज करना है तो उसका उसका जो एक तरीका है वो ये है कि एरे में आप स्टोर कर सकते हैं कि आप पहले इनपुट डालेंगे तो वो पहले एरे को डिफाइन करेगा और कहेगा कि इसमें एक एक वैल्यू डाल देगा, क्योंकि एक पहला इनपुट है। और फिर आप जो दूसरा इनपुट डालेंगे तो वो क्या करेगा, पहले एरे को एक और एरे में कॉपी करेगा, फिर फिर एक नया एरे डिफाइन करेगा जिसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू डालेगा, और फिर जो पहले एरे की वैल्यू है वो कॉपी करेगा, इट विल कॉपी इट बैक टू द सेम एरे, और फिर उसमें वो एक एक्स्ट्रा इनपुट लेगा। इट विल डू दिस रिपीटेडली एज लॉन्ग एज यू कीप ऑन गिविंग इनपुट। एक और जो तरीका है वो ये है कि आप लिंक लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एक लिंक लिस्ट अभी हमने पढ़ी नहीं है। लिंक लिस्ट में ये क्या करता है कि वो मेमोरी लोकेशन उसमें अटैच करता रहता है आपकी लिस्ट के अंदर। ठीक है, वो हम आगे चल के वो आप डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो ये तरीके हैं। So the array of data now has only QLG. The square values are gone. Yes, you are right, normally.
ठीक है, इसको मैं फिर से आपको कर देता हूँ। ये हमने क्या किया कि हमारा जो मेन फंक्शन था, ठीक है, मेन फंक्शन में हमने ये डेटा को डिफाइन किया, डिक्लेयर किया था। ठीक है, डेटा हम डिक्लेयर किया था। जब डेटा को डिक्लेयर किया तो उसने क्या किया कि उसने इधर उसने अच्छा उसने इस जगह को उसने पॉइंट करना शुरू कर दिया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इधर 5 लिखा हुआ है, बेसिकली उसने 10 वैल्यूज की थी। ठीक है, और उसमें फिर पहली जो जगह थी उसके अंदर उसने 1 डाला था कि बिकॉज वी आर स्क्वायरिंग। दूसरी जगह पे उसने 4 डाला था, तीसरी जगह पे उसने 9 डाला था, चौथी जगह पे उसने 16 डाला था, एंड सो ऑन। ठीक है, ये किया था। अब हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम है क्यूब, और जो फंक्शन क्यूब था उसमें हमने डेटा को पास कर दिया। अब चूंकि डेटा जो है इट्स एन एरे, तो जब एरे को आप पास करेंगे इट विल ऑलवेज पास बाय रेफरेंस, इट विल नॉट पास बाय वैल्यू। अगर मैं पास बाय वैल्यू करता तो मैं 10 की 10 जो वैल्यूज थी मुझे उसकी कॉपी बनानी पड़ती। मैं एक नया एरे क्रिएट करता, उसकी मैं लेंथ 10 डिफाइन करता और उसमें सारी की सारी वैल्यूज कॉपी करता। ये तो ये चलो 10 तक सही है, 20 तक सही है, 100 तक सही है, 500 तक सही है, लेकिन आगे पास बहुत से एरेज होते हैं मिलियंस में होते हैं, बिलियंस में होते हैं, ट्रिलियंस में होते हैं, उनकी लेंथ होती है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप जब भी कॉपी करेंगे तो आपको उतनी ही मेमोरी लोकेशन और चाहिए ताकि आप सारी सारी वैल्यूज कॉपी करें और उस एरे की कॉपी बनाएं। तो बजाय इसके हम ये करें, हम क्या करते हैं, हम सिंपली उस एरे को एज रेफरेंस ही पास करते हैं। तो ये जो हम पास करते हैं, तो क्यूब जो है उसके अंदर हम इसका जो रेफरेंस है, ये जो एड्रेस वैल्यू है, ये हम पास कर देते हैं। अब क्यूब के अंदर हमने देखा था उसकी जो डेफिनेशन है क्यूब, उसमें ये जो एरे आप पास करेंगे वो उसको एक और एरे में ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो जिस एरे में एक्सेप्ट करेगा उसका नाम मैंने एरे रखा, वैसा नाम डेटा भी रख सकता था। ठीक है, लेकिन इट वुड हैव बीन अ लोकल डेटा रेफरेंस। ठीक है, मैंने इसमें एरे नाम रख दिया ताकि मैं उससे कंफ्यूज ना हूँ। अब जब ये किया तो उससे क्या हुआ कि आपका जो क्यू फंक्शन था डेटा, जिसमें डेटा पास की, तो क्यू फंक्शन के अंदर उसने इसी डेटा का नाम एरे रख दिया। ठीक है, जब इसका नाम एरे रख दिया तो ये क्यू फंक्शन भी जो है ना वो इस तरफ पॉइंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो ये फंक्शन और जो मेन फंक्शन है ये एक ही तरफ पॉइंट करेगा। अब क्यूब के अंदर जो मैं वैल्यूज डालूंगा तो वो उधर ही डालेगा जहाँ पे डेटा में वैल्यूज है। तो उसमें चूंकि मैं क्यूब वैल्यूज डाल रहा था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 की जगह वो 4 की जगह 8 आ जाएगा, 9 की जगह 27 आ जाएगा, 16 की जगह 64 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये था क्यूब करा था वैल्यू, तो उनको डाले जाएगा, तो इन्हीं जगह पे वो सारी वैल्यूज जो है ओवर राइट हो जाएगी। ठीक है, अब चूंकि उसी जगह पे सब वैल्यूज ओवर राइट हो गई हैं तो मुझे कुछ रिटर्न की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल या तो होता ना कि कोई एरे था ही नहीं। अब मैं कहता अच्छा एरे है ही नहीं तो मैं एक एरे को रिटर्न कर दूं। अब एरे पहले से एग्जिस्ट करता है, मैंने उसको लिया एरे को और उसी के अंदर मैं नई वैल्यूज डाल दी। जब इधर नई वैल्यूज डाल दी तो मुझे आई हैव नथिंग टू रिटर्न, इसलिए फंक्शन वॉइड था और उसमें कुछ रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो होपफुली बाकियों को भी समझ में आ गया होगा ये। अगर रिटर्न स्टेटमेंट होती तो फिर क्या होता वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सर ऑल द मेमोरी लोकेशन आर से, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ यूजिंग एरे इन प्रीवियस फंक्शन। उसका जो फंक्शन है वो ये है कि इट्स एन एग्जांपल। एग्जांपल दिए मैंने आपको कि अगर वैल्यूज ओवर राइट हो जाएंगी तो इससे अच्छा पॉइंट क्या, पॉइंट ये है कि फर्ज करें कि पहले आप एक एरे में काम कर रहे हैं, बस मेमोरी लिमिटेड है, आपने एरे के ऊपर काम कर रहे थे, यू डोंट वांट टू डिक्लेयर अ सेकंड एरे। आप अगर सेकंड एरे डिफाइन करेंगे तो इट विल टेक एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन, तो आपने उसी एरे को दोबारा रीयूज कर दिया, ठीक है, उन्हीं मेमोरी लोकेशन को दोबारा रीयूज कर दिया। ये फायदा है। ठीक है, ये भी फायदा हो सकता है कि उसमें से किसी एक रैंडम लोकेशन में कोई आपने वैल्यू डाल दी थी, अभी तो मैं सारी वैल्यूज डाल दी ना, तो बाकी सारी वैल्यूज वही रहे, एक वैल्यू चेंज कर दी, ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है कि इसकी वजह से हम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए फायदा क्या है, फायदा ये है कि
ऑब्वियसली हमने देखा होगा सारा काम आप मेन फंक्शन के अंदर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। फंक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि जो कोड है मॉड्यूलर हो जाए, ताकि अगर कभी किसी फंक्शन में गड़बड़ हो तो मैं उस फंक्शन को देखूँ, पूरे मेन फंक्शन को ना देखूँ। ठीक, तो इसलिए आप फंक्शंस बनाते हैं। अगर रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करें तो विल इट हैव एन इम्पैक्ट? यस इट विल हैव एन इम्पैक्ट, हम उस पर आएंगे अभी। आपको पता चल जाएगा उसका क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, सो डोंट वरी। तो सिंगल डायमेंशन एरे होगी आपका। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टी डायमेंशन एरे। अब इसमें क्या हुआ, मल्टी डायमेंशन एरे में मैंने एक मल्टी डायमेंशन एरे डिफाइन किया विच इज 3x3 मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप एरे बनाते हैं मल्टी डायमेंशनल है, उसमें ये नहीं होगा कि जो पहली रो है वो 2 लेंथ की होगी और दूसरी रो है 5 लेंथ की होगी, तीसरी रो है वो 7 लेंथ की होगी। सबकी अगर जो लेंथ है ना सेम होती है एरे के अंदर। ठीक है, तो अगर 3x3 है तो सारे की लेंथ जो है 3 रहेगी। ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग होते हैं जिसके अंदर लेंथ फर्क होती है। ठीक है ना, कि एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में हर स्ट्रिंग की लेंथ फर्क होती है। ठीक है, तो वो आगे चल के इसलिए स्ट्रिंग्स का हम अलग टॉपिक है, हम उसको अलग पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। लेकिन जो आप अभी तक जो आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में जो आप स्ट्रिंग पास करते हैं, देखा होगा एरे बना हुआ था। ठीक है, और उसके अंदर मुख्तलिफ लेंथ के आप इनपुट्स देते थे ना। ठीक है, आपने कभी छोटा स्ट्रिंग दिया, कभी लंबा स्ट्रिंग दिया, तो उसमें उसमें जो डिफाइन होता है कि एरे ऑफ स्ट्रिंग्स में उसमें लेंथ जो है वो चेंज हुई हुई होती है, बाकी सब में डबल वगैरह में चेंज नहीं होती। ठीक है, तो स्ट्रिंग जो है ना एक अलग स्पीशीज है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। ओके, तो हम इसको फिर से देख लेते हैं। अब हमारा ये जो है हमें डिक्लेयर किया डेटा के नाम से। ठीक, और इसमें 2 फॉर लूप लगे हुए हैं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स इंटेंशनली मैंने निकाले हुए हैं ताकि आपको इस तरह कोड नज़र आ जाए तो आप लोग परेशान ना हो। ये 2 फॉर लूप ही हैं। ठीक है, तो आपको मैंने जिस तरह बताया था कि फॉर लूप के बाद जो सिंगल स्टेटमेंट है वो हमें एग्जीक्यूट होगी अगर आगे पास ब्रैकेट्स नहीं लगे। ठीक है, तो इसमें चूंकि एक ही स्टेटमेंट है इसलिए ब्रैकेट्स लगाए या ना लगाए फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या करें, डेटा आई जे में ये 1 into जे। ठीक है ना, ये डाल रहा है इसमें। सही है, तो ये वैल्यू इसके अंदर डाल रहा है। ठीक, और उसके बाद वो सारी वैल्यूज को प्रिंट आउट कर रहा है। अगेन उसी तरह प्रिंट एलन करें। फिर मैंने पास टू डी मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें मैं वो जो डेटा है जो ऊपर मैं डिफाइन किया था वो उसको पास कर। ठीक, अब चूंकि ये मल्टी डायमेंशनल एरे है तो मुझे एक्सेप्ट मल्टी डायमेंशनल एरे में ही करना पड़ेगा। इसके अंदर ये क्या कर रहा है कि उस एरे की जो वैल्यूज है उनको वो प्रिंट कर रहा है। हाँ यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये टेस्ट करने के लिए मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक, तो उसके अंदर सिंपली वो वैल्यूज को प्रिंट आउट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो जस्ट टू शो कि जो ऊपर वाली वैल्यूज है अंदर वाली वैल्यूज है वो सेम है, फंक्शन वो है, तो हम वो बस डिफाइन कर रहे हैं इसके अंदर। unless I had some other thing in mind। वैसे वो है ना कि मैं कोड बनाता हूँ उसमें भूल जाता हूँ कि मैं कर क्या रहा था। ये 3x2 एरे इज पॉसिबल। कोई गड़बड़ हो गई 1 2 3 ऐसे 2 3 एरे में चेंजिंग करी है, चलो देख लेते हैं। पास टू डी, हाँ पास टू डी देखा ही नहीं, कह रहा मैं काम नहीं कर रहा। हाँ पास टू डी में मैंने, हाँ पास टू डी में दूसरी वैल्यूज डाल दी। ठीक है, उसमें था आई इंटू आई प्लस जे था, इसमें मैंने आई प्लस जे कर दी। ठीक, तो सिंपली क्या हुआ कि जो आपका यहाँ पे था कि पहले इसके अंदर ये वैल्यूज ऐड हुई थी, तो जब पास टू डी चलाया उसके बाद ये वैल्यूज आपके पास प्रिंट आउट होगा। तो यही मल्टी डायमेंशनल एरे भी उसी तरह काम करता है जैसे कि आपका सिंगल डायमेंशनल एरे काम करता है। मल्टी डायमेंशनल एरे को बस देख लेते हैं एक नंबर पास टू डी। नहीं, यहाँ पे मैंने मल्टी डायमेंशनल एरे लिखा। ठीक है, अब ऐसा चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि मैंने इसको लेंथ नहीं पास की। ठीक है, तो अगर आप उसके अंदर जाके लेंथ गलत डाल देते हैं, सही, तो जो कंप्यूटर है वो एरर दे देगा। ठीक है, तो आपने अगर इस तरह काम करें तो लेंथ का आपने खुद ख्याल रखना। दूसरा तरीका क्या है कि आप उसकी एरे डॉट लेंथ से आप उसकी लेंथ लें। ठीक है, अच्छा
क्या है कि अगर रिटर्न में ऐड करें तो क्या होता है 3/2 एरे इज नॉट पॉसिबल. व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल. देखो 3/2 एरे जो है उसमें आपने 3 रोज और 2 कॉलम्स कर दिए. तो ऐसा नहीं होगा कि वो 3 रोज 4 कॉलम्स हो, एक 3 रोज 4 कॉलम्स हो, एक 3 रोज 1 कॉलम हो, एक 3 रोज 15 कॉलम्स हो. ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. तो उसमें हमेशा जो लेंथ और जो विड्थ है वो सेम होगी. आप कह रहे हैं आप एक ग्रिड बना रहे हो. ठीक है. तो ग्रिड जो है सेम होगा. सर मुक्ति डिम एरे के नाम के 2 फंक्शन मल्टी डायमेंशन एरे. नहीं नहीं, एक ही फंक्शन है. सिंगल डायमेंशनल एरे है ये गिवन है, और मल्टी डायमेंशनल एरे ये गिवन है. दो तो नहीं है, सिर्फ एक फंक्शन है. ठीक है. सही है. तो हमने वही काम किया. पहले हम सिंगल डायमेंशन एरे के लिए कर रहे थे, अब हम मल्टी डायमेंशन एरे कर रहे थे, लेकिन दोनों में आप देखें सिर्फ नाम में पास कर रहा हूँ. ठीक. तो ये आपको दिखाना था कि ये दोनों के लिए काम करेगा. अच्छा. अब ये है, ये क्या है, मेक मी एरे. अभी ये था कि हम रिटर्न कब करेंगे, वो क्वेश्चन था. ठीक है. हम रिटर्न इस सिचुएशन में करेंगे कि फर्स्ट में आप मेन फंक्शन में काम कर रहे हैं और एकदम से आपको जरूरत पड़ गई कि यू वांट सम एरे, यू वांट टू वर्क विद सम. तो मैंने मेक मी एरे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जिसका मकसद क्या है कि उसको मैं लेंथ दे दूंगा, मुझे उस लेंथ का एरे बना के वो मुझे रिटर्न कर देगा. ठीक. जी. वॉइड का क्या मतलब है? हाँ, मतलब क्या है वॉइड का? नहीं, वॉइड का अंग्रेजी का क्या मतलब है? एम्प्टी. एम्प्टी. ठीक है. जो एम्प्टी है आपने वर्ड लिखा उसका मतलब एम्प्टी. इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. ठीक है. तो अगर आप उसके अंदर कुछ आपने कुछ रिटर्न करना है तो आपको बताना पड़ेगा आप क्या रिटर्न कर रहे हैं. ठीक है. तो जैसे इस केस में मैं क्या रिटर्न करूं बताएं? इंटीजर एरे. ठीक है. तो वो आपको इधर लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो जो आप चीज़ रिटर्न करें वो आपको लिखना पड़ती है. ठीक है. आप जब आप वॉइड कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आई एम नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, इट्स एम्प्टी. तो इसलिए आप कुछ रिटर्न नहीं करेंगे. ये बहुत सिंपल सा है. तो मैंने कहा मेक मी एरे में जब भी फंक्शन कॉल करूंगा उसको मैं एक लेंथ पास कर दूंगा और ये मुझे खुद वो एरे बना के दे देगा. इसमें क्या करूँ मैं, इंट एरे डिफाइन किया इज इक्वल टू न्यू इंट. उसमें जो लेंथ थी उस लेंथ मैंने पास कर दी थी, वो पास में इधर आया और फॉर लूप लगाया. उसमें मैंने ये एरे की वैल्यूज डाल के एरे की वैल्यूज डाल दी. उसके बाद में रिटर्न एरे कर दिया. सही. तो आप इसको देख लेते हैं. ठीक. अब क्या किया, मैं इंटीजर माई एरे लिखा. ठीक है. और मैंने कहा कि माई एरे इज इक्वल टू मेक मी एरे 25. मेक मी एरे ने क्या किया, उसको मैंने लेंथ पास कर दी. तो उसने एक एरे बनाया, उसके अंदर उसने सारी वैल्यूज डाली और उस एरे को रिटर्न कर दिया. अब चूंकि उसने रेफरेंस बनाया था उसने रेफरेंस को रिटर्न कर दिया, तो वो रेफरेंस से माई एरे को मिल गया. उसके बाद जब मैं इसको प्रिंट आउट करूंगा तो मुझे उसकी सारी वैल्यूज प्रिंट आउट करना है. ठीक है. इसको चला के देख लेते हैं एक नज़र. एक मिनट. रन. ठीक है. आपकी 0 से 24 तक वैल्यूज आ. ठीक है. तो जब आपने कोई चीज़ रिटर्न करनी हो, एरे को रिटर्न करना, तो आप इस तरह एरे बना के उसको रिटर्न कर सकते हैं. ठीक है. तो ये इसके फायदे हैं. ठीक. अ, अ, अच्छा. तो अब कोई सवाल, कोई चीज़ समझ में ना आई है? अच्छा. इसमें एक जो चीज़ का ख्याल रखना है आपने, ठीक है, ये आपको सी में हो सकता है आप आगे चल के सी में काम करें. और
जावा इस चीज़ को सपोर्ट करती है, सी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। होता यह है कि आपने को मैंने बताया था कि जब फंक्शन आप चलाते हैं, कोई फंक्शन चलाएंगे, तो जब फंक्शन खत्म होगा तो वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मेक मी एरे में असूलन जब मैं ये फंक्शन जब खत्म होगा तो ये एरे जो है ये खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन खत्म होते हुए ये इसको रेफरेंस को रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो रेफरेंस मिल जाता है तो वो वैल्यू जो है वो एलोकेटेड रहती है, जावा इस चीज़ का ख्याल रखती है। ठीक है, सी प्लस प्लस होगी ना तो सी प्लस प्लस इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती, वो कहती है कि इसको फारे कर दो। ठीक है, तो वो फिर आप काम वो फिर भी करेगा, सिर्फ मसला ये है कि सी प्लस प्लस कहती है कि अच्छा वो मेमोरी जो है ना जिसपे आप अब पॉइंट करें वो मैं इस्तेमाल करूँ, कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप मेमोरी इस्तेमाल लिखते हैं कि इंटीजर लिखा तो वो लॉक हो जाती है मेमोरी, वो आपके लिए होती है, आप इस्तेमाल, कंप्यूटर उसको नहीं छेड़ता। तो जब एक दफ़ा वो वेरिएबल जब फंक्शन ख़त्म होता है तो वेरिएबल ही ख़त्म हो जाता है, वेरिएबल ख़त्म हो गया तो कंप्यूटर को मैसेज मिल जाता है कि अब आप उस मेमोरी लोकेशन को इस्तेमाल नहीं कर, तो कंप्यूटर उस मेमोरी लोकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर किसी भी प्रोसेसिंग करते हुए उसमें कुछ भी डेटा लिख देगा, ज़्यादातर नहीं लिखता, कई बार लिख भी देता है। जावा इसका ख्याल रखती है कि वो ऐसा कंप्यूटर ना करे, सी प्लस प्लस इसका ख्याल नहीं रखती। सी प्लस प्लस में कोई फंक्शन आपने कोई वेरिएबल बनाया, उसका हमने रेफरेंस पास कर दिया, तो वो सिंपली वो उसको सिर्फ रेफरेंस बता दी कि आपने वो एड्रेस पास कर दिया, वो ये नहीं बताती है कि ये अभी मेमोरी इस्तेमाल होगी। उसका तरीका है सी प्लस में कैसे उसको बताते हैं कि हम इस्तेमाल करें, जावा में वो उस चीज़ का ख्याल रखती है। ठीक है, तो ये आगे चल के शायद कभी अगर सी प्लस हो वास्ता पड़े तो ये दिस कैन कम, ये हो सकता है आप। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। ठीक, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि आपने कोई फंक्शन बनाया, उसको मैं यहाँ पे वो पहले लिख दूँ, मैं फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड सर्च, सही, बाकी इसको इंट सर्च कर, और इसमें मैं एक इंटीजर एरे में पास करूँगा, सो डेटा माई डेटा कर माई डेटा, बाकी माई डेटा। और अब और यहाँ पे एरर से दे रहा है कि मैंने कोई चीज़ रिटर्न नहीं की है, रिटर्न नाम की जगह इंट इंडेक्स और रिटर्न इंडेक्स। सही, अब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि ये जो फंक्शन ये क्या करेगा कि मैं इसको एक एरे पास करूंगा और मैं इसको एक नंबर पास करूंगा, और मैं इससे कहूँगा कि तुमने क्या करना है कि तुमने मुझे ढूंढ के देना है कि ये नंबर जो है किस इंडेक्स वैल्यू में पड़ा हुआ। बात समझ में आएगी? तो इसका जो तरीका है वो ये है कि मैं इसको कमेंट आउट करूँ, मैं एक एरे बनाता हूँ, इंट डेटा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैं डेटा पास कर दिया और मैं लिखता हूँ इंट आंसर विच इज इक्वल टू सर्च डेटा और नंबर मैं इसको 5 दूँगा। ठीक है, और फिर द नंबर
बस the number num is at location बस ठीक है। अब हमने करना क्या है कि हमने एक एरे बनाया, अब ये सिर्फ आसानी के लिए रखा है, तो यह है 0 1 2 3 4, तो लोकेशन 4 बनती है, इंडेक्स 4 उसको बताना पड़ता है। ठीक, तो हमने कहा कि ये जो नम था हमने 5 पास कर दिया, तो सर्च के अंदर हमने डेटा यानी कि ये एरे पास किया, नम हमने वो नंबर पास कर दिया कि हमने इस एरे के अंदर ये नंबर ढूंढना। ठीक, दैट इज द क्वेश्चन। तो हम इसको कैसे करेंगे बताएं। पहले लेंथ निकालेंगे, ठीक है। मैं क्या बताएं, मैं क्या लिखूं? अच्छा, फॉर लूप चलेगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, I is less than my data dot length और I प्लस प्लस। अच्छा, तो कैसे करेंगे? हाँ तो बताए ना, कोड बताए ना, कोड तक। If I is equal to my data नहीं, ये भी नहीं होगा, वो सही कह रहे हैं। इफ नम इज इक्वल टू माई डेटा आई, ये आप करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाँ रिटर्न नहीं, रिटर्न आई। ठीक है ना, और अगर वरना रिटर्न -1, अभी वैसे ही जस्ट फॉर क्या कोई वैल्यू नहीं मिली तो -1 रिटर्न कर देगा, अगर वैल्यू मिल गई तो उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, सीम्स फाइन। कोई गलती लग रही है आई प्लस प्लस में? डेट कोड कर रहा है, इफ इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन माई रिटर्न लेंथ आई प्लस प्लस। मैं तो नहीं ख्याल कोई गड़बड़ है। अच्छा, रिटर्न इंडेक्स कर रहे हैं ना, तो रिटर्न इंडेक्स की जरूरत नहीं है सर। नहीं, गड़बड़ है सर। वो फॉर के लूप में जब पहला जो है आई जो है मैच नहीं करेगा तो पहला जो आई है मैच कर दे, क्या मतलब? मतलब सर जैसे कि अगर आप आपको 5 की वैल्यू चाहिए कि उस 5 कहाँ पर कौन सी लेंथ पर है, और जब वो 0 पे चल रहा होगा उसको नहीं मिलेगा तो वो इफ की कंडीशन पे पास करेगा और डायरेक्ट रिटर्न कर देगा -1। ओ हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये गलत जगह लिख दिया मैंने, ये इधर लिखना था। ठीक है, अब ठीक है। तो सही पॉइंट आउट किया, क्या ये इसी में -1 करेगा, उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब ये चलता रहेगा फॉर लूप, अगर सही वैल्यू मिल गई तो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये रिटर्न कर देगा -1। ठीक, तो अब इसको चला के देख लेते हैं, इफ आई हैवंट मेड अ मिस्टेक, इफ आई इज एट लोकेशन 4। सही, अब इसी तरह मैं इसको 15 देता हूँ, रन करता हूँ, 15 लोकेशन -1। सही है, तो अब इसका फ़ायदा ही हुआ कि देखें, अब मुझे डेटा जो था अभी बहुत लंबा भी हो सकता है। अभी तो मैंने डेटा खुद से लिखा हुआ अपनी आसानी के लिए, डेटा बहुत लंबा भी हो सकता है, उसको सर्च करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस कोड वट एवर ओवर हियर,
ठीक है, बस फंक्शन को कॉल कर दो, फंक्शन में मैंने डेटा और नंबर जो मैं ढूंढ रहा था मैंने पास कर, उसने वो ढूंढ के निकाल के दे दिया। ठीक है, तो और मुझे इसकी मुझे कॉपी भी नहीं बनानी पड़ी डेटा की। ठीक है ना, वो उसके रेफरेंस को इस्तेमाल कर दिया और उसके ऊपर वो काम कर दिया। ठीक, इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब जो आपने एक और चीज़ का जो ख्याल रखना है वो ये रखना है कि जब आप मल्टी डायमेंशनल एरे बनाएंगे ना और उसकी जब आप लेंथ लेंगे, ठीक, तो वो आपको सिर्फ रो की लेंथ बताएगा। अगर 3/5 है, ठीक है, 3/5 है, आप कहेंगे लेंथ दो उसकी, तो वो आपको सिर्फ 3 देगा, आपको 15 नहीं देगा। तो अब क्या है कि अब आप कहते हैं अच्छा वो बाकी की लेंथ कहाँ गई, तो फिर आपको करना पड़ेगा कि लेंथ जो है, जो भी एरे का नाम है, ब्रैकेट्स में 0 डाल के। ठीक है ना, कि अच्छा ये जो रो है इसके कॉलम की क्या लेंथ, मुझे वो निकाल के दो, तो फिर वो आपको 5 रिटर्न करेगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो वो अगर आप लेंथ लेंगे मल्टी डायमेंशन एरे की, तो वो आपको सिर्फ पहले रो का देगा, उसके बाद फिर आपको पहली रो लेके फिर उसकी अगर आप लेंथ लेंगे तो फिर आपको कॉलम की लेंथ देगा। ठीक है, तो ये ख्याल रखिएगा इसका। ठीक है, तो आज का बस यही है, आज का टॉपिक ज़्यादा छोटा था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी ख़त्म हो गया। तो फिर बाकी अब आप लैब की एक्सरसाइज कीजिएगा, उसमें इम्पोर्टेंट लैब की एक्सरसाइज वो आप कीजिएगा। और अभी मैं ख़त्म करूँ, किसी का क्वेश्चन तो मुझसे पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। जी जी, नहीं 3/3 तो 2 डायमेंशन होगी ना, 3/3 2 डायमेंशन होगी, मल्टी डायमेंशन। कॉलम एक्सेस नहीं होगा। देखिए मैं आपको जो बात बता रहा था, ये बता था कि अगर आप एरे बनाते हैं, ठीक है, तो एरे आपका हमेशा इस तरह बनता है। ये पहली रो हो गई, दिस इज वन डायमेंशन। अब ये जैसे ही आप दूसरी रो बनाते हैं, इट बिकम सेकंड डायमेंशन। ठीक है, और फिर जो तीसरी है वो भी दिस इज अगेन सेकंड डायमेंशन। ठीक है, ये थर्ड डायमेंशन ही हो गई। तो आपके जो ये तो आपकी रोज है, फिर हर रो में कॉलम है। ठीक है, हर रो में कॉलम है। तो आप जब भी मल्टी डायमेंशन एरे बनाएंगे ना, तो वो एक ग्रिड बनेगा, इस तरह का ग्रिड बनेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या लिखा हुआ है, 3/3 रखा हुआ है, 3/6 रखा हुआ है, 3/2 रखा हुआ है। ठीक है, वो आपका हमेशा ग्रिड बनेगा। वो ये नहीं होगा कि अगर ये इस तरह हो, ऐसा नहीं होगा कि एक की लेंथ इतनी है बाकी की लेंथ फर्क है। ठीक है, वो इस तरह नहीं बनेगा आपका। ठीक है, मैं ये बात बता रहा हूँ, ये ऐसा सिर्फ स्ट्रिंग में पॉसिबल है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में हमें नहीं पता स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, मुख्तलिफ स्ट्रिंग की लेंथ हो सकती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज में हमेशा आपके पास ग्रिड बनेगा, जो एक कंप्लीट ग्रिड होगा, उसमें ये नहीं होगा कि एक लेंथ ज़्यादा एक लेंथ कम। तो वो मैं बात बता रहा हूँ। Simply to share the recording for students who are regular, it helps us to refer things when we doing practice and studying ourselves later. नहीं अभी अभी मैं नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि मैं अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि यही अफसोस की बात है कि जैसे कि आप कोई किसी फॉरेन कंट्री है नहीं गए, तो मैं काफ़ी गया हूँ। और मसला ये है कि सरप्राइजिंगली हर दफ़ा ना मैं सरप्राइज चेकिंग में मेरी ज़्यादा हमेशा सरप्राइज चेकिंग में साइड में खड़ा कर दिया जाता है कि पाकिस्तान से आ गया इसमें साइड में खड़ा कर दो। ठीक है, मसला क्या है, मसला ये है कि आपके जो हम वतन जो लोग हैं जो कि बाहर गए हैं, उन्होंने वहाँ पे इतनी गड़बड़ी मचाई है कि वो हमेशा हमें सस्पेशन से देखते हैं। ठीक है, अब वो ये होता है कि सीधा साधा आदमी जो कि अपने काम से जा रहा है, वो पिछली बार 3 बार भी कॉन्फ्रेंस में जा चुका है, चौथी बार कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, फिर भी साइड में खड़ा करके इंतजार कर रहा था, वेट कर रहे हैं। उन लोगों ने गड़बड़ की हुई है, और बाकी लोग जो सिंपल लोग हैं वो पिस जाते हैं उसमें। ठीक, तो ये इधर भी यही मसला है कि मेरी पिछली जो क्लासें हैं उसमें तो 2 लैब्स तो हुई नहीं, स्टूडेंट्स ही नहीं आए। जो 2 क्लासें हुई उसमें क्या था कि एक में 45 स्ट्रेंथ है, उसमें एक में 15 लोग आए थे, दूसरे में 12 लोग आए थे। अटेंडेंस का हमें रिलैक्सेशन दी हुई है ना अटेंडेंस की,
कि अटेंडेंस की रिलैक्सेशन ये दी हुई है कि चूंकि कोविड चल रहा है, नेट किसी का बाजुगात के कोई है अगर आगे पास 44 है उनमें से 2 का नेट नहीं चला, ठीक है, तो उनके लिए उनको रिलैक्सेशन हो कि ये ना हो कि बेचारों का नेट खराब है या फिर गिलगित में बैठे हैं। नहीं तो वो है ना कि बात ये है कि अब ये है कि मैं क्या करूँगा, मैं इनका अपलोड करूँगा, फौरन नहीं करूँगा, मैं देर से करूँ, ठीक है। तो तो ये अभी 2-3 हफ्ते गुजर जाएंगे, फिर ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप जिसने जिसने अटेंड करना है वो वक्त पे आए, अटेंड करे। देखिए मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं अपलोड करूँ, ठीक है, मैं पहले ही बताता रहा कि मैं अपलोड इसलिए करता हूँ ताकि इसी वजह से कि जो आप लोग कह रहे हैं कि रेफर करना हो उनके लिए आसानी हो, उन्हीं के लिए मैं अपलोड करता हूँ। लेकिन अब लोग जो है कि सुबह को उठा नहीं जा रहा, सोए पड़े, हम सब आ रहे हैं इधर, वो इतना ही बॉदर नहीं कर रहे उठ के देखें कि भाई वो लेक्चर तो अपलोड हो जाएगा, हम रेस्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं कहा कि नहीं सॉरी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। और इससे पहले कभी कोई लेक्चर अपलोड नहीं होता था, आप लोग क्लास में आके ही सारे लेक्चर लिया करते थे, ठीक। तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये मैं अपलोड करता हूँ दैट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर कुछ अपलोड नहीं कर रहा दैट इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है ना। तो वो जो अनफॉर्चुनेटली आपके जो बैचमेट्स कह लूँगा जो कि बहुत लेजी हुए हैं, तो उनको ज़रा झंझोड़ना है कि भाई ज़रा आप वक्त पे आ जाए, ये आप लेक्चर, क्योंकि आपको आप फ्री राइड नहीं मिलेगी। तो ये रीज़न है, ठीक है। तो अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्ड मैंने किया हुआ है, लेकिन कुछ देर के बाद, ताकि अब आप वक्त पे नहीं पढ़ेंगे तो यू आर गोइंग टू लूज, ठीक है। ये हो सकता है क्योंकि आगे चल के जो क्विजेज हैं वो हर वीक होंगे, अभी तक कोई क्विज नहीं हुआ ना, हमारा छठा वीक आगे कोई क्विज नहीं हुआ। असाइनमेंट दी है ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें, अच्छे हो जाए, प्रिपेयर्ड हो जाए, उसके बाद फिर मैं क्विज में धड़ धड़ लेना शुरू कर दूंगा। हर वीक एक क्विज होगा, हर वीक एक क्विज होगा, हर वीक एक क्विज होगा, ठीक है। तो उसके लिए अब अगर आप पीछे रह गए, क्लास में नहीं आ रहे, अभी क्विज खराब हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज माई वे ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। तो ये कुछ काम करते मैं पसंद नहीं है, अगर मैं कोई काम करते अगर मुझे पसंद ना होता मैं शुरू से अपलोड ना कर रहा होगा, लेकिन अब स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा है, ठीक है। तो इसका यही तरीका है कि वो डिफिकल्ट सबके लिए है, मोहम्मद अली सबके लिए है, तो उसका तरीका वो ये है प्रैक्टिस करें, ठीक है। वो दैट इज द वे। सबने इसी तरह सोचा है, सबने इसी तरह सीखा, मैंने इसी तरह सीखा। हम जब से हो सकता है यूट्यूब नाम की कोई चीज़, इंटरनेट भी हमारा 2 किलोबाइट पर सेकंड, वो भी आखिरी ईयर में हमें मिलना शुरू हुआ, ठीक है ना। अब तो यहाँ तो तब तक 2 मेगाबाइट पर सेकंड भी लोग स्लो समझते हैं, ठीक है। तो उस पर आना शुरू हुआ था, तो हमने किताबों से पढ़ा है, ठीक है। तो किया जा सकता है, डोंट वरी, प्रैक्टिस करें। कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमजा, आई टोटली एग्री, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट्स आ नहीं रहे, ठीक है, तो मुझे आई हैव टू डू समथिंग, ठीक है। सर्च फंक्शन दिखा दें, सर्च फंक्शन कहाँ है, बंद तो नहीं किया मैंने सर्च फंक्शन। ये आप लोग अगर आप लोग नहीं, लेकिन तो मैं अभी बैठा हूँ, मैं इनके सवाल के जवाब दे रहा हूँ, यू कैन गो इफ यू वांट, ठीक। तो एक ही जगह दिखाएगा ना, क्या चीज़ आ रही 2 टाइम्स? विद इन डायमेंशन 5 के 2 टाइम आ रही है, विद इन डायमेंशन 5 के 2 टाइम आ रही है, तो पहले एक ही टाइम शुरू करेगा ना, रिटर्न की वजह से ब्रेक हो जाएगा, राइट, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक आज लैब में सवाल है कि जितनी दफ़ा आएगी तो आपने उतना उतना एरे बनाना है, ठीक है ना, और फिर आपने वो वैल्यूज जो है वो रिटर्न करनी एज एन एरे। तो आप एक एरे रिटर्न करेंगे जिसके अंदर सारी इंडेक्स वैल्यूज जो है वो लिखी हुई होंगी। हाउ इज फंक्शन एक्सेप्टिंग 2 इनपुट्स? देखें आपने, मैंने इधर ना आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं। एक मैंने आर्ग्यूमेंट एरे का दिया हुआ है और एक आर्ग्यूमेंट मैंने उसका दिया हुआ है नंबर का, ठीक है। तो जो एरे है वो मैं इसमें पास करता हूँ और जो नंबर है वो मैं इसमें पास करता हूँ, तो इस वजह से सर्च जो है 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करें।
हसन, अब आप जब भी लैब पे हैं तो आप मुझसे पूछ लेंगे, मैं लैब में बैठा हुआ होता हूँ, तो दैट इज द वे ऑफ डूइंग इट। एक असाइनमेंट के साथ हमारे से एक सवाल था सर, जो थर्ड क्वेश्चन है बॉक्स वाला, इसमें नाम लिखना है और वो उसके फाइल बड़ा सकता रहेगा बॉक्स का, राइट? तो सर उसको जो चेक करना है, हमें उसको इस तरह चेक करना है कि वो स्ट्रिंग की लेंथ चेक करे तो उसके हिसाब से फॉर लूप मैंने किया है कि मैंने उसको इस तरह करेगा, लेंथ डाल रहा हूँ, स्ट्रिंग आ गया ना, स्ट्रिंग आ गया असाइनमेंट में, स्ट्रिंग की एक लेंथ है। अब उसमें आपने एक स्पेस पहले छोड़ना, एक स्पेस बाद में छोड़ना। तो अगर स्ट्रेंथ उसकी 5 है तो यू एक्चुअली नीड अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 7, ठीक है, और फिर उसमें एक स्पेस छोड़ के उसके बीच में लिखना है। सर मतलब नाम अपना कुछ डाल देना, मतलब कोई भी नाम, यूजर से नाम लेना और वो कुछ डाल देना। उससे वो बॉक्स खुला देगा। ऊपर आखिरी लाइन बनाए, बिल्कुल इसी तरह होगा। पहली लाइन बनाए तो लास्ट वाली लाइन एक इसमें कर दी, फिर ऊपर वाला और बीच वाली लाइन में उसको अलग कर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये क्यों क्यों कराया है, क्यों दिया असाइनमेंट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप कोई विंडो खोलते हैं तो स्क्रीन किसी जगह पे खुलती है ना, ठीक है, तो अब आपने स्क्रीन की डायमेंशंस लेके उसको सही जगह प्लेस करना होता है। तो ये वही चीज़ है, लेकिन बहुत क्या कहते हैं कि एक प्रिमिटिव फॉर्म में। तो लेकिन यही चीज़ आगे चल के ना उसमें चली जाती है, तो इसलिए आपको, ताकि आपको चीज़ों को ना करने में, और अगर टेबल आप बनाएंगे, टेबल का भी है कि साइज बड़ा छोटा, ये टेबल को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, किया नहीं। उसमें यह था कि आप टेबल में आप जितने आप स्ट्रिंग वैल्यूज देंगे उसके हिसाब से टेबल का साइज बड़ा छोटा होना चाहिए। तो अगर आपने 10 वैल्यूज दी हुई हैं तो फिर वो उस हिसाब से, तो फिर आपको उसमें आपने जो इनपुट्स दिए हैं उनमें सबसे पहले देखना होगा सबसे लंबा इनपुट कौन सा, तो उस बेसिस पे आपको लेंथ डिफाइन कर देगी। और फिर वो करने के लिए फिर अब जो हर, अब ये अगर वो लेंथ थी 10 थी, फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद एक स्ट्रिंग आया इसकी लेंथ है 5, तो 5 जो बीच में आप कैसे लिखेंगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको ज़्यादा सिंपल रखा। लेकिन लेकिन वो एक देखिए, वो आप खुद से करें उसे, ठीक है ना, कि अपनी स्किल्स बनाने के लिए कि किस तरह होगा कि जब, अच्छी बात है, ये सारा आपको पे बैक करेगा जितना आप करते हैं। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी तक तो ये आप पे बैक करेगा, ठीक है। आगे चल के मौका मिला ना तो फिर आपकी इसमें हम गेम्स ही बनाएंगे, ठीक है ना। जो अगली अगली जो असाइनमेंट मैं सोच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि आपको दूं कि सब आपको ऑटोमेटिकली रैंडमली एक डंजन क्रिएट होगा, ठीक है, डंजन या एक रूम क्रिएट होगा, उसके अंदर मुख्तलिफ एनिमीज भी होंगे, वॉल्स भी होंगे। तो आधे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना होगा, और हर स्टॉप पे जब आप एक स्टेप लेंगे तो उस स्टेप पे क्या हो रहा है, तो उस तरह तो फिर उसमें आप स्टेप ले लेंगे, मूव लेफ्ट मूव राइट अप डाउन करके आप चलते रहेंगे। आपने अल्टीमेटली एंड तक पहुंचना है, और हर हर टाइम में कुछ ना कुछ होगा जो सब कुछ रैंडमली जनरेटेड होगा। तो उसके उसकी बेसिस पे आप, तो हर बार जब आप गेम खेलेंगे तो एक नया डंजन बनेगा और नया तरीके से आप खेलेंगे, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह आती है। तो देखते हैं, अभी पहले ये असाइनमेंट कर लें। मोहम्मद अली, असाइनमेंट जो था उसकी मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी, मैं कहा अब मेल्स पढ़ नहीं रहे हैं। अब मैं तो हर 5 दिन हो गए, हर 4-5 दिन हो गए। तो असाइनमेंट आप अपनी मेल्स चेक नहीं करें, मेल्स चेक कर लें। वो स्ट्रिंग अगर न हो जाए तो इसका फॉर लूप नो डू ऐसे करना होता है ना। फॉर लूप की कंडीशन रखूं क्या? फॉर लूप तो खुद लूप है। हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने अपने दोस्त को ये बोला था कि फॉर लूप के अंदर ये होता है कि होते ना काउंटर लगा होता है, ऐसा कुछ कह रहा था। अगर काउंटर लगा होता है, मैंने मुझे ये करना था कि लिमिट रखनी थी कि जैसे अगर स्ट्रिंग नो हो, अगर कुछ भी मैंने रखा हुआ है इनपुट, अगर मैं नो करूँ तो लूप को ब्रेक होना है, ठीक है। तो मैंने इसको सबसे पहले इस क्लॉज से किया था कि अगर फॉर लूप लगाया है और फॉर की कंडीशन सेट नहीं कर पा रहा है, मैंने ये करा था, मैंने फॉर की कंडीशन 100 कर दी थी। तो मैंने बोला कि अब वो गलत है क्योंकि जब 100 टाइम्स एक्सीड कर देगा
तो फिर वो लूप ब्रेक हो नहीं जाएगा। तो इनपुट है ना आपका, आपने हमने ये रखा हुआ है इनपुट जब तक नो नहीं होगा तब तक। नहीं सर, मैंने ये करा था, नहीं लूप तो मैंने वो तो ब्रेक करने का तो लगाया मैंने कि लूप ब्रेक हो जाएगा। मैंने ये करा कि जब तक लूप, लेकिन जब तक चलता रहेगा वो नो करता, वो यस करता रहेगा ना, तो लूप खाली 100 टाइम चलेगा। क्यों उसे वाइल लूप लगा दें, वाइल तो चलता तो रहेगा। सर मुझे ये कंफ्यूजन आ रही थी कि सर मैंने वाइल लूप से सर मतलब कंफ्यूजन हो रही है फॉर और वाइल लूप में, वाइल डू वाइल, सर ये नहीं मैं आपको मैंने पहले for पहले इस्तेमाल कर लिया तो डू और डू नहीं, आप वाइल। दोनों को दोनों कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर लूप को भी आप काउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइल लूप भी काउंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर लूप को आप कंडीशन ऐसी लगा देंगे अनलिमिटेड चले, तो वाइल लूप भी कंडीशन ऐसे लगा अनलिमिटेड चले, दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, ठीक है। नॉर्मली होता ही है वाइल लूप आप उधर यूज करते हैं जहाँ पे अनलिमिटेड आपको पता नहीं है कितनी दफा चला, नॉर्मली आप उधर करते हैं। फॉर लूप आप नॉर्मली उधर के इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपको पता है कितनी दफा चला। तो फिर अगर आपको नहीं पता कितनी दफा चलाना है तो इट्स बेटर टू यूज अ वाइल। तो उसमें वाइल लूप कहते हैं कि ये फलाना कंडीशन, नॉर्मली इसको फ्लैग कहते हैं, फ्लैग, ठीक है। कि जो है ना कि झंडा ऊपर किया हुआ है चलते रहो, झंडा नीचे कर दिए रुक जाओ, तो इसलिए कहते हैं। तो फ्लैग आपने ऊपर किया हुआ है, फ्लैग जब तक ट्रू है तो वाइल लूप चलता रहेगा। तो जहाँ पे आपने ऐसी कंडीशन दे दी कि जो कि उसको ब्रेक करना चाहिए, तो फ्लैग को फॉल्स कर देना, तो वो लूप वहीं पर रुक जाता है। तो इस तरह चलता है। तो इसलिए बस ये जहन में रखेंगे वाइल लूप है तो नॉर्मली यूज इट फॉर अनलिमिटेड, क्या आपको पता नहीं कितनी दफा चलेगा। फॉर लूप है तो यू ऑलवेज यूज इट फॉर लिमिटेड। ये एक अच्छा रूल है, यू डोंट हैव टू फॉलो इट, लेकिन नॉर्मली इट इज फॉलो दिस, ठीक है। तो आसानी होगी। अगला सवाल, क्या समझ में नहीं आया इसमें? ये तो सिंगल डायमेंशन है। ये क्या उसमें पासिंग समझ में नहीं है, मल्टी डायमेंशनल एरे समझ? अच्छा देखेंगे, आपका है ये मल्टी डायमेंशनल एरे है ना, ये फंक्शन ये वाला, ठीक है। मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है मान लीजिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बस ये बताया मैं मल्टी डायमेंशनल एरे डिफाइन कर रहा हूँ, ये 3x3 का है, ठीक। फिर मैंने रखे दो फॉर लूप लगाए और उसके अंदर मैंने वैल्यूज डालना शुरू कर दी, ठीक है। तो ये देखें अब आई जो है क्या है, जीरो है, जीरो प्लस वन वन हो गया, जीरो प्लस वन वन हो गया, वन इंटू वन क्या आया वन, मल्टीप्लाई बाय, तो जे क्या है जीरो है, जे प्लस वन वन इंटू वन वन आ गया आपका, ठीक। तो इसने पहली जगह पे वन वैल्यू स्टोर कर दी है, वन नहीं, जीरो जीरो पे आई जीरो है ना, जे जीरो है, उस पर आपने वन स्टोर कर दी, ठीक। अब ये दोबारा चलेगा लूप, ठीक है। तो ये बल्कि अभी जे लूप चलेगा, आई अभी भी जीरो रहेगा, जे जो है वो वन हो जाएगा, ठीक है। तो आई जीरो है तो वन इंटू वन वन आया, इंटू जे क्या है वन प्लस वन टू हो गया, ठीक है। तो वन इंटू वन, वन इंटू टू, तो आगे पास टू आ जाएगा, तो टू स्टोर हो जाएगा। आई कॉमन है, देखा हम इस फॉर लूप से तो बाहर ही निकल रहे हैं ना, जब तक इस फॉर लूप से बाहर ही निकलेंगे आई तो जीरो रहेगा। तो अब जे जो है वो जीरो वन टू हो जाएगा, टू पे वो जे खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आई बढ़ जाएगा, उसके बाद जे फिर से जीरो हो जाएगा, फिर आई जब वन होगा उस पर जे जब फिर से जीरो वन टू चलेगा, फिर आई टू हो जाएगा, जीरो वन टू चलेगा, और फिर उसके बाद खत्म है। तो इस तरह होता है। ये फॉर लूप दूसरा लगा सिंपली प्रिंट कर रहा है, हाँ सिर्फ वो कर देंगे। देखिए इसमें ये है कि ये जो मैंने लाइन लिखी है ये ऐसे है असल में, ठीक है ना। ये तो सही है, और लास्ट वाला आपने लिखा है सिस्टम डॉट आउटपुट एंड ये तो सिंपली एक लाइन नीचे करने के लिए ना। उसके बाद क्या आता है पास टू डी। पास टू डी तो वो है कि ये फंक्शन है जिसके अंदर मैंने डेटा जो ऊपर लिखा था पास कर दिया, पास टू डी आपने ऐसा कहें ना, आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, आप ये कर दें, अब जितनी वैल्यूज में वन चला जाएगा, ठीक है। अब
जो मेरे पास एरे बना पूरा पूरा वो है 3 by 3 का एरे है, उसमें 1 1 1 1 1 1 1 1 ठीक है, वो मैंने इसमें पास कर दिया पास 2D में वो एरे फंक्शन है, देखे ना फंक्शन है, ब्रैकेट्स चलेंगे मैं ना, ये है ना डिफाइन, ये है ना पास 2D। ये मल्टी डायमेंशन के ऊपर है नीचे ये नहीं ये एक अलग फंक्शन है ना, इसको मैं कहीं भी डिफाइन करूँ, ऊपर डिफाइन कर दूँ नीचे डिफाइन कर दूँ, ये तो काम करेगा, मेन के अंदर नहीं होना चाहिए लेकिन बाहर डिफाइन कर दूँ। अब इसमें मैंने जो है डेटा जो था वो पास कर दिया, वो वाला आ जाएगा, ठीक है। अब एरे और डेटा जो है एक ही चीज़ है, ठीक है। अब इसके अंदर आई जे के अंदर मैं i+1 + j+1 ये वैल्यू डाला तो 1 की जगह ये वैल्यूज आना शुरू हो जाएगी, इस तरह बस ये काम कर जाएगा। तो सिंपली इसका यहाँ पे आप इसको रन करके देख लें, ठीक है। तो पहले 1 1 1 जैसे मैंने आपसे कहा था वो उससे सही वैल्यूज आ गई, उसके बाद जो पास 2D में जब उसको एरे को पास किया उसने 2 3 4 3 4 5 और 4 5 6 उसने वैल्यू स्टोर कर, बस ये हो, ठीक है। आगे समझ, गुड। क्या तो क्या करेंगे, नहीं नहीं रिकॉर्डिंग में अभी नहीं दे रहा।